Hi, everybody. Welcome. It's very exciting for me because there's a lot of known people who are not a part of our Seeker community. So, Seeker is a startup. It's been founded by Ankur Jain Kaushalji, who's going to be taking us through the session today, and me. And we've created tools. We've created a tool to measure cognitive attention. And it's really like it's like having a roadmap for your mind to understand whether your mind is taking you exactly where you want to go in life or whether there's some tweaking required. And we prescribe remedies to help you negotiate that terrain. We also run classes. They're called Mind Mastery classes. There's a foundation program for 8 weeks, and there is a immersive program for 14 to 16 weeks. But more than anything else, there's a whole lot of us who are here. We're all a part of Seekers community, and all we say is we're all seekers of the truth. We're seekers of well-being. We're seekers of a path where anxiety and stress are not the norm of everyday life. So we want to create a no anxiety world, and we want to create a world where people have beautiful functional relationships with their mind, which help them and help everybody that comes in their contact. So with that, Saima, it's all yours, and welcome, and thank you so much for joining us. Thank you, Shivani, and who could have done this better than you? So hello and welcome everyone to today's show. I'm Saima, and I'm thrilled to have you all join us today for this enlightening conversation on a very common topic, which is meditation. I have been a part of Seeker for last 2.5 years now, and I'm still seeking. Now, whether you are new or to meditation, or you've been practicing meditation for years, today's session does promise to offer something very much valuable for everyone. Now, we all know meditation is an incredible tool that has the power to transform your mind, body, and lives. We all know that. But how do you choose the right method? What is the intricacy and depth of meditation? What do you do when your mind wanders and just doesn't focus while meditating? So, how can you ensure you are getting the best out of your practice? So, today we are going to explore all these questions and much more with a focus on 4 distinct types of meditation. And those are gross meditation, subtle meditation, radiant meditation, and observer meditation. And to guide us through this entire journey, I'm honored to welcome our special guest, a seasoned meditation expert, Acharya Kaushal Kumarji. And what I spoke about these types of meditations are all taken up from his book, which is Meditation, the Path to Excellence. The author of the book is right here in front of us, and he is going to enlighten us on that. So welcome, Kaushalji. Thank you for being a part of our session today. So, sir, let's start with a broad overview. Like, could you explain what these 4 types of meditations are? Like, I had never even heard of these types of meditations before. And how are they different from one another? Over to you, sir. सॉरी, मैं म्यूट में था. नमस्ते. मेरी आवाज आ रही है सबको? नमस्ते सर. जी सर. नमस्ते सर. सबसे पहले तो हम लोग मेडिटेशन के जो 4 प्रकार हैं उसको समझने के पहले तो सबसे पहले ये समझ ले कि मेडिटेशन है. मेडिटेशन क्या है? हिंदी तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा. हमारे यहाँ
तो वेद के समय से ही योग और ध्यान पर चर्चा हुई, यानी बहुत प्राचीन काल से। और वास्तव में हमारे ऋषियों की जो सबसे बड़ी देन है पूरे संसार को, वो एक ही है कि उन्होंने हमारे मन की शक्ति को समझा, पहले ही समझ लिया था कि हमारे मन में कितनी शक्ति है। और इसी के लिए देखिए, जो हमारा हिंदी में या संस्कृत में मानव, मनुष्य, मनुज, ये जो शब्द हैं, ये सब मन से ही वो शुरू होते हैं। और अगर मनुष्य शब्द को आप बहुत ध्यान से देखें तो संस्कृत में मनुष्य की व्याख्या क्या की गई है? मननात् मनुष्य, जो मनन कर सकते हैं, यानी रूमिनेट कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, वे मनुष्य। और वेद में शुरू में ही ये कहा गया कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। तो मनुष्य का मतलब क्या है हमारे यहाँ वेद का, या जो हमारे यहाँ जो भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में, मनुष्य का मतलब ही है जो मन को जीत ले, उसे हम मनुष्य कहते हैं। और जब तक आप मन पर विजय ना प्राप्त कर लें, तब तक आप मनुष्य नहीं है हमारी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के हिसाब से। तो मन को जीतने का तरीका क्या है? मन को जीतने का एक ही तरीका है, वह है योग और ध्यान। ध्यान योग का ही पार्ट है। जो हमारा ये माइंड मास्टरी का प्रोग्राम है, यानी आप माइंड पर मास्टरी करें, तो वास्तव में मनुष्य बनाने का प्रोग्राम है। हम मनुष्य नहीं हैं, वो मनुष्य बनने के लिए कह रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उन्हीं लोगों के लिए पुस्तक लिखे होंगे जो मनुष्य नहीं है, बाकी तो पशुओं के लिए तो पुस्तक लिखेंगे नहीं। तो जो मनुष्य वास्तव में मनुष्य की खाल में तो है मनुष्य, देखने में तो मनुष्य है, शरीर मनुष्य का मिला है, लेकिन अंदर से मनुष्य नहीं है। उन्हीं के लिए उन्होंने ये किताब लिखी और कहा कि मनुष्य बनो, यानी अभी तुम मनुष्य नहीं हो, मनुष्य बनो। अभी तुम में जो है वो पशुता है, और वो पशुता का उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक भी बताया कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये पशुता के लक्षण है। भोजन, नींद, बच्चे पैदा करना और भय करना, ये पशुता के लक्षण है। और ये अगर तुम में भी है और पशु में भी है, तो फिर अंतर क्या है? अंतर सिर्फ एक ही चीज उन्होंने बताया कि ज्ञान का, कि जो ज्ञान है उस ज्ञान की वजह से तुम डिफरेंट हो। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारे यहाँ भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में पहले से ही यह बात कही गई कि मन पर विजय करो। और वो बात देखिए आज तक भी जो है वह उतनी ही रेलेवेंट है, अब तो मेरे ख्याल से ज्यादा रेलेवेंट हो रही है, क्योंकि लोग मन से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और हमेशा रहा होगा, तभी उन्होंने ऐसा ये पद्धति विकसित की, ये पद्धति डेवलप की, हमेशा ये बात रही होगी। तो केवल योग और ध्यान ही वह पद्धति है जिससे आप मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो माइंड मास्टरी के प्रोग्राम में जो हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है, उसमें आपको इसी तरफ ले जाया जाता है कि आप अपने मन पर विजय प्राप्त कैसे करें। क्योंकि मन आपको रूल कर रहा है, मन नॉर्मली हमको रूल कर रहा है। और जब मन हमको रूल करता है तो हम पशु हैं, और जब हम मन को रूल करते हैं तो हम मनुष्य हैं। और कबीर इस बात को बहुत अच्छी तरह से कहते हैं। कबीर कहते हैं कि जो है, हम क्या है कि हम लोग जो है मन, आवाज कुछ आ रही है, तो हम लोग जो है कहते हैं कि मन जो है, मन पर मन हमारे ऊपर राज करने लगा है। तो मन हमारे ऊपर राज करने लगा है, तो इसका यही मतलब है कि हम मनुष्य सीधे नहीं है। मेडिटेशन एक टेक्निक है जो हमारे ऋषियों ने बनाया कि आप इसके अभ्यास से मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लोग डरते ये हैं, क्योंकि जो चीज हम किए नहीं रहते हैं तो उसमें ढेर सारी आशंका पैदा होती है
कि मन पर अगर हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो हमारा संसार जीवन कैसे चले। ढेर सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि अगर मन पर विजय प्राप्त किया तो संसार कैसे चलेगा, संसार में माने हमारी सांसारिक चीजें कैसे चलेगी, घर गृहस्थी कैसे चलेगी, फिर धन के प्रति धन कैसे हम अर्न करेंगे, काम कैसे करेंगे, ये सब चीजें कैसे करेंगे। वास्तव में यह गलत, पूरा का पूरा गलत कॉन्सेप्ट हमने विकसित कर लिया है, और हमारे कुछ ग्रंथों ने भी इस तरह से लोगों में गलत धारणा फैलाई है। मेडिटेशन में अगर मास्टर आप हो रहे हैं, योग में मास्टर हो रहे हैं, तो आप बाकी और चीजों को भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, संसार की सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि आप भोजन करना बंद कर देंगे, आप जो है बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे, आप जो है वो नींद लेना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है, या धन कमाना बंद कर देंगे। मेडिटेशन का ये मतलब है कि जो चीज प्राइमरी है उसे आप प्राइमरी इंपॉर्टेंस देंगे, जो चीज सेकेंडरी है उसे सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देंगे, जो चीज जैसी है उसको वैसा इंपॉर्टेंस देंगे। तो प्राइमरी हमारा मन पर नियंत्रण है, यह प्राइमरी है, और ये सब कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी कुछ लोगों के लिए सब कर सकते हैं। जो सेकेंडरी है वो सेकेंडरी भी करते रहिए। कुछ लोग प्राइमरी पे ही पूरा जीवन दे देते हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, कबीर हैं, ये लोग इसी पर पूरा जीवन ही दे देते थे, तो ठीक है। कुछ लोग इस पर भी जीवन देना चाहते हैं और सेकेंडरी चीजों पर भी जीवन देना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन मेडिटेशन से आप वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो चीजें आप चाहते हैं, क्योंकि आप माइंड पर मास्टर कर लेते हैं, और यही हमारा मेडिटेशन है। अब हम मेडिटेशन के उन पार्ट्स पर आते हैं कि इनके कितने पार्ट्स होते हैं। वास्तव में ये पार्ट्स कोई ऐसा नहीं है कि ये हमारा अपना खुद का बनाया हुआ है। हमारे ऋषियों ने तो मन की 5 अवस्थाएं बताई थी। देयर आर 5 स्टेजेज ऑफ आवर माइंड। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्त एकाग्र निरुद्धमिति क्षिप्त भूमया, 5 स्टेजेज बता दी, और वो भी एक समझाने की दृष्टि से। बाकी हर एक व्यक्ति का मन बिल्कुल अलग है, अलग अलग है, तो उन्होंने समझाने की दृष्टि से बता दिया कि 5 प्रकार के मन होते हैं। तो 5 प्रकार के अब मन होते हैं, यानी कुछ लोगों का मन बहुत चंचल होता है, कुछ लोगों के मन में इंडोलेंस बहुत होता है, आलस्य बहुत होता है, कुछ लोगों में रेस्टलेसनेस बहुत होती है, कुछ लोगों में रेस्टलेसनेस भी होती है और थोड़ा कभी कभी कंसंट्रेशन भी आ जाता है, कुछ लोगों में कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया होता है, कुछ लोग कंसंट्रेशन के भी बियॉन्ड चले जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने 5 लेवल बता दिए। तो जो 5वां है वो कंसंट्रेशन के भी बियॉन्ड चले जाना है, तो उसका तो कोई मेडिटेशन होता नहीं, वो तो परिणाम है, वो तो रिजल्ट है, मेडिटेशन का रिजल्ट है जिसको आप समाधि कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो 4 हैं उन्होंने उनके लिए मेडिटेशन का 4 प्रकार बता दिया। तो जो बहुत ग्रॉस लेवल के हैं, जो बहुत इंडोलेंट हैं, बहुत लेजी हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने एक ग्रॉस मेडिटेशन में बहुत ग्रॉस माइंडेड है। ग्रॉस माइंडेड का मतलब कि जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ बाहर की संसार की ही चीजें दौड़ती हैं, यानी उनको जो उनकी नीड है इन्हीं 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 पर ही उनका पूरा मन दौड़ता है बस, और इसके अलावा और नहीं जाता है। रोटी कपड़ा मकान, इन्हीं चीजों पर उनका मन जाता है, तो ग्रॉस ही माइंड हो गया। तो ग्रॉस माइंड के लिए उन्होंने ग्रॉस चीजें बना दी कि भाई तुम ग्रॉस मेडिटेशन करो। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो थोड़ा सा अपर लेवल पे है, लोगों के लिए नहीं। तो ग्रॉस लेवल के लिए फिर आप ये करेंगे कि आंख खोल करके करें, क्योंकि आप आंख बंद करके ध्यान सब लोग नहीं कर सकते। आंख बंद करते हैं तो मन और ज्यादा भागने लगता है, और बहुत ज्यादा भागने लगता है, उनको पकड़ में ही नहीं आता है मन। माने ध्यान करने आधा घंटे बैठेंगे और फिर उसके बाद अगर आंख बंद करके बैठ गए तो आधे घंटे बाद उठेंगे तो उनको यही नहीं पता होगा आधे घंटे में कि वो क्या रहे थे, क्योंकि इतना मन घूमता रहता है। मैंने देखा है कि ढेर सारे लोगों को कि जो है वो ध्यान करते हैं, बैठते तो हैं, लेकिन जब उनसे जब बाद में आधे घंटे बाद पूछो कि तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्या किया, तो कहें ये हमको मालूम ही नहीं, क्योंकि बहुत ग्रॉस होता है, उनका मन बहुत चंचल होता है, तो समझ ही नहीं पाते हैं। एक पल के लिए नहीं ठहरता है, तो उनको ग्रॉस बता दिया गया कि भाई आप आंख खोल करके कोई मूर्ति रख लो, कोई गुरु की फोटो रख लो, कोई जो भी इस तरह की चीजें, जो ग्रॉस चीजें हैं जो आपको परसीव हो सके आंखों से, उनको आप रख लो और उन पर फोकस करो। जैसे मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे ये सब चीजें बना दी गई,
ये मेरे ख्याल से उसी दृष्टि से बनाई गई जो बहुत ग्रॉस लेवल के लोग होते हैं। तो इस तरह से बना दिया गया। फिर जब इस पर आप फोकस करने लगे तो कुछ दिनों बाद जब आपका इस पर मन एकाग्र होने लगे, आंख खोल करके एकाग्र होने लगे, तो वही चीज आप जो आंख खोल करके करते थे, अब आप आंख बंद करके उसी पर फोकस करना शुरू कर, आंख बंद करके उसी को विजुलाइज करके उसको मेंटल एक इमेज बना के उस पर फोकस करना शुरू कर दें, तो ये सटल मेडिटेशन होगी। जब आपका इस पर भी कुछ दिन करने पर आपका मन एकाग्र हो जाए, तब फिर आप जो है अब थोड़ा और शटल चीजों पर आ जाए, जैसे ब्रीदिंग पर आ जाए। ब्रीदिंग का तो कोई पिक्चर बना नहीं सकते हो, गुरु का तो पिक्चर बना सकते हो, मेंटल इमेज बना सकते हो, चित्र बना सकते हो, लेकिन ब्रीदिंग का कौन सा चित्र बनाओगे जिसका कोई चित्र ही नहीं बन सकता है। उस तरह की चीजों पर आ जाओ, थर्ड पर आ जाओ, या आंख बंद करके आप जो है जो कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है वो देखते रहो। अंधेरा दिखाई पड़े, कोई लाइट दिखाई पड़ रही है, या बीच बीच में बदलती हुई चीजें हैं, तो वो देखते रहो। और फोर्थ लेवल पर जब इस पर भी आपका थर्ड पर अच्छी तरह से मन एकाग्र होने लगता है, तब आपका फोर्थ लेवल पर फिर आप अपने थॉट को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो उसे हम ऑब्जर्वर मेडिटेशन करते हैं। तो आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं। जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं, तब फिर आपको हाईएस्ट लेवल वाला रास्ता साफ हो जाता है कि आप फिर अब समाधि में पहुंचने के लिए आप योग्य हो गए हैं। अब आप किसी भी दिन आपकी समाधि लग सकती है, जब आप ऑब्जर्वर मेडिटेशन वाला बेहतर उसमें आपका मैंने प्रोफिशिएंसी आ जाती है, तो फिर आप समाधि लेवल पर आ जाते। तो ये 4 प्रकार की ये सहजता समझने के लिए बना दिया गया है। अब उसमें ये होता है कि 5 भी बना सकते हो, 10 भी बना सकते हो, तो लेकिन अब डिपेंड करता है कि जो शिष्य होता है, स्टूडेंट होता है, उसका जब टीचर गुरु उसकी इस काबिलियत जैसी देखता है उसी हिसाब से वो बता देता है। तो जब उसको उस हिसाब से बता देता है, तब फिर वो करने लगता है। तो ये 1 to 1 ही बात होती है, लेकिन लिखने के लिए भी तो कुछ समझाने के लिए कि सारे तो 1 to 1 हो नहीं सकते हैं, तो इसलिए गुरुओं ने इस तरह से बना दिया। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। सो सर आप ये भी बोल रहे हो, इसका मतलब जो हम कॉमन मेडिटेशन के सोर्सेज देखते हैं, पीपल वॉच, देर आर सो मेनी मेडिटेशंस अवेलेबल, बट ध्यान नहीं है, फोकस तो नहीं हो रहा है अगर लोगों का, सो इट हैज टू बी अंडर गाइडेंस of somebody who's expert, who can watch, who can observe, जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, जो भी साधक है, वो किस लेवल पर है मेडिटेशन के, उसको उसके लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि वो कहाँ से शुरू करे और कहाँ तक उसको पहुंचना है। बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, दे स्टॉप मेडिटेटिंग कि कुछ नहीं हो रहा है इससे। देयर वाज आई वाज आल्सो देयर एट वन टाइम कि बहुत सारे थॉट्स आते थे मुझे, और अभी भी आते हैं, बट तब कुछ भी आता था, अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लैरिटी आ जाती है मेडिटेशन में बैठते ही। विच इज दैट मेडिटेशन? देखिए, ये तो है ही है कि आप कुछ भी मैंने आप बाहरी सांसारिक दुनिया में देख लीजिए, अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो आप एक टीचर नहीं बनाते हैं। आप क्लास में जाते हैं तो एक टीचर होता है, पढ़ने जाते हैं तो टीचर होता है, आप वकील बनना चाहते हैं तो एक सीनियर वकील होता है, उस तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है। अब आपको बनना वकील है, लायर बनना है, और आप एमबीए कर रहे हो, और आप पढ़ जो है दूसरी चीजें, फिजिक्स की चीजें रहे हो, केमिस्ट्री की चीजें पढ़ रहे हो, तो देन हाउ कैन यू बी ए मेडिटेटर, तो हाउ कैन यू बी ए लायर। तो कहने का ये मतलब है कि जो चीज आपको करना है उस तरह के मास्टर के पास तो आपको जाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो बेहतर, वो जो उस मार्ग से चल चुका है, तो उसको मालूम है कि इस रास्ते में क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या परेशानी आती हैं, किस तरह से क्या समस्याएं आती हैं, तो वो बता देता है, तो गाइड कर देता है। तो गाइड करने पर सहूलियत हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर मैंने जो देखा है कि ज्यादातर 99% अभी तक मैंने लोगों को देखा है कि जो मेडिटेशन जो करने आते हैं, वो अपनी इंस्टेंट रिलीफ के लिए आते हैं। कोई एक टेंशन हो गई, कोई स्ट्रेस हो गया, उसके लिए आते हैं, जिज्ञासा के लिए नहीं आते हैं। जिनको जिज्ञासा है उनको अपना मार्ग अपने आप ही बना लेंगे, क्योंकि जिसने पहली बार बनाया है वो तो अपने आप ही बनाया था ना। तो जिनको तीव्र जिज्ञासा है बुद्ध के जैसे, फिर भी बुद्ध को भी देखिए कि गुरुओं की तलाश करनी पड़ी थी, लेकिन तीव्र जिज्ञासा है तो मार्ग अपने आप ही मिल जाता है अंदर वाला। लेकिन जो इंस्टेंट रिलीफ के लिए आते हैं,
उनके लिए तो हमको बताना पड़ता है, उनको तो टीचर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, गुरु चाहिए। और क्योंकि उनके भटकने के भी चांस होते हैं, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि भटकने के चांस होंगे, तो फिर टीचर अगर रहेगा तो संभाल लेगा, नहीं तो फिर आदमी भटक जाएगा और भी ज्यादा उल्टे उल्टा चले जाएगा, उल्टा करने लगते हैं। Right. And sir, also a lot of people find this problem of time. Time is another very crucial factor when people say कि they don't have, firstly, they don't have time. And secondly, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए फॉर एन आइडियल मेडिटेशन? अगर किसी का मन बहुत जागरूक, मतलब इतनी सारी जिज्ञासा है उनके उनके अंदर कि वो उनका मन भटकता रहता है, वो कितनी देर तक बैठ के कर सकते हैं मेडिटेशन? जैसे कि आपने भी कहा कि कई बार लोग आधा घंटा बैठते हैं और उनको फिर भी नहीं मालूम कि उन्होंने किया क्या, रिजल्ट क्या, आउटकम क्या आया उनका उस प्रैक्टिस से। सो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है अगर किसी को ये जर्नी शुरू करनी है तो? देखिए, जो सबसे पहली चीज आपने कहा कि जो है मेडिटेशन में क्या पूछा, मैं भूल ही गया, मेरे दिमाग से कि उतर गई। टाइम, पहले तो उनको लगता है कि टाइम ही नहीं है ये सब करने का, कहाँ है टाइम मेडिटेशन करने का, ध्यान नहीं लगता है। ठीक है। अब असल में ऐसा है कि एक तो आप, जो मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस को नहीं समझता है वो टाइम नहीं निकाल पाएगा, जो मेडिटेशन के इम्पोर्टेंस को समझता है वो टाइम निकाल। ठीक है, और ये मूर्खता है लोगों की जो ये कहते हैं कि टाइम नहीं है। वो मैं बताऊं कि मैं ढेर सारे लोगों को ऐसा देखा हूं कि जो है बोलते हैं कि टाइम नहीं है, लेकिन किसी भी रॉन्ग नंबर पर आधा आधा घंटे बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो है मेडिटेशन के लिए कहोगे तो नहीं करें, कहेंगे कि टाइम नहीं। फालतू की चीजों पर अगर आप ऐसे व्यक्तियों को देखिए कि अगर वो अपना समय लिखें सुबह से शाम तक कि उन्होंने क्या क्या किया, तो आप देखिएगा कि उनका करीब 98%, 99% फालतू के टाइम में काम जाता है, काम में टाइम जाता है, और वो अपने आप को बिजी समझते हैं। तो ये तो पक्की मूर्खता की बात करते हैं लोग, मैंने ब्लंट भाषा में कहे तो। लेकिन सही सही अगर आप मन की स्थिति को समझ लेना, तो कभी भी आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि मेरे पास टाइम। और जिस चीज को आप इंपॉर्टेंस देते हैं उसके लिए आपको टाइम हर हालत में आप निकाल लेते हैं। 24 घंटा तो बुद्ध के पास भी 24 घंटा से ज्यादा तो 25 घंटे का समय नहीं होता था। और यही नहीं, मैं तो ये देखता हूँ कि जो है जितने भी बिजीएस्ट पीपल हैं उनको आप देखिए, वो मेडिटेशन जरूर करते हैं। जितने भी महान लोग हुए हैं जिनके एक एक मिनट का समय मैंने खुद देखा है, एक एक मिनट का उनका समय जो है निश्चित होता है, वो मेडिटेशन करते हैं। और जिनको वही रॉन्ग नंबर वाले में आधे घंटे जो बात करने वाले हैं वो कहेंगे कि हमारे पास टाइम। तो मन की इंपॉर्टेंस अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो जो है स्वाभाविक सी बात है कि आप जो है वो नहीं करेंगे। जब जिस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे उस चीज का नहीं करेंगे। गुरु जी इस पर जो है बार बार ये चीज, लोग आते थे तो पूछते थे कि टाइम नहीं है, तो ये कहते थे कि किस चीज के लिए तुम्हारे पास टाइम? धन के लिए है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर सुबह उठ नहीं पाते हैं क्योंकि रात में बहुत देर तक काम करना होता है। और रात में काम और देर तक क्या करना होता है, बहुत ऐसा तो कोई बहुत मैंने कुछ लोग जिस रात में जैसे बहुत उनका ऑफिस ही चलता हो तो बात अलग है। नहीं तो बाकी मैं देखता हूँ कि ढेर सारे लोगों को देखता हूँ तो फालतू एक एक दो दो बजे, हमारा एक स्टूडेंट है, जब वो सुबह जो है मुझे व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग का करता है तो मैं कभी देखता हूँ उसको, तो वो रात 1 बजे गुड मॉर्निंग का एसएमएस किया, मैंने व्हाट्सएप किया। अब तुम रात 1 बजे जग रहे हो, फिर कहता है कि सुबह जो है हमको उठने का समय ही नहीं होता। रात 1 बजे तक जगोगे तो कैसे होगा? तो गुरु जी ये कहते थे कि अगर तुमको मैं 4 बजे बुला लूं और तुम बिजनेसमैन हो, तुमको 5 लाख का जो है ऑर्डर दे दूं रोज रोज, तो तुम 4 बजे के बजाय तुम 3 बजे आ जाओगे, 2 बजे आ जाओगे, और मेडिटेशन के लिए तुम टाइम नहीं निकाल पाते हो। तो हम इम्पोर्टेंस किस चीज को कितना देते हैं, कितना हमारी समझ है उस पर डिपेंड करता है। जिसकी गहरी समझ है वह मेडिटेशन को कभी जो है इग्नोर कर ही नहीं सकता है। यस सर, वेरी वेल, तो थैंक यू सर।
तो ये मालूम है कि मन की ही शक्ति को कंट्रोल करके आप अपनी पूरी जीवन की शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। वह जो है कैसे किस किस उसमें लेजीनेस करेगा, किस उसमें सुबह नहीं उठ पाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना उठ पाए। आपके शरीर में आग लगी हो और फिर आप जो है लेजीनेस कैसे करेंगे? जिसको ये मालूम है कि हर पल जो है मृत्यु के हम वश में हैं, वो किस आधार पर लेजीनेस करेगा? क्यों करेगा? उसको तो 4 बजे नहीं 3 बजे ही नहीं खुलेगी कि भाई पता नहीं कब जो है शरीर छूट जाए, इसलिए आज का काम आज कर लो फटाफट कर लो। हम तो जो हम तो जो है यहाँ जो है वो अनंत समय तक जीने के लिए आए हैं ना। लोग ये सोचते हैं कि अभी पता नहीं कब तक जिएंगे, पर 80-90 साल का एक एक अपना फिक्स बना लेते हैं, प्रिजुडिस बना लेते हैं कि 90 साल 100 साल तक का बना लेते हैं। तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि फिर नहीं मन करेगा। जी सर, ऐसा बहुत बार लोगों ने मुझे बोला भी है कि अरे तुम अभी क्यों मेडिटेशन करती हो, अभी तो बहुत उम्र बढ़ी है, एक तो बूढ़े लोगों का काम है। सर, आपने वक्त की भी बात की थी, सुबह आपने बहुत बार मेंशन किया अभी कि सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो क्या सुबह ही बेस्ट टाइम होता है मेडिटेशन करने का? जैसे ब्रह्म मुहूर्त की बहुत बात की जाती है, सो ब्रह्म मुहूर्त का इतना ज्यादा ही इम्पोर्टेंस है या किसी भी वक्त किया जा सकता है इसको? सर, किसी ने पूछा भी है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू मेडिटेशन? अगर आपको जो है आप बैठे हो दोपहर में और सांप आ जाए आपके घर में, तो सांप को भगाने का क्या बेस्ट टाइम? उसी वक्त। उसी वक्त। तो आपको ये पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि आप कब उसको करिए। आपको तो जो है बस बेस्ट टाइम अपने आप निकाल लीजिए और उसको कर लीजिए। हाँ, सुबह का समय जो है डेफिनेटली बेटर इसलिए होता है कि आप सो करके उठे होते हैं। जब आप अगर शाम को करिए तो दिन भर के पूरी चीजें विचार आते रहते हैं, ऑफिस में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, उसने क्या बोला, फोन पे क्या आया, ये सब चीजें विचार चलते रहते हैं। सुबह सब सो के उठिए जब, तो रात में वो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। ठीक है, नींद के बाद थोड़ा शांत हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए, वो रोस्ट हो गए, ऐसा नहीं है। थोड़ा शांत हो जाते हैं। जब शांत हो जाते हैं और फिर उस समय फोन वगैरह भी आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, किसी फ्रेंड के या किसी भी दूसरे के फ्रेंड मैंने फोन आने के भी चांसेस कम होते हैं। हमारे फ्रेंड्स के आने के भी घर कम चांसेस होते हैं। और साथ में घर वाले भी जो है कम डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे समय उठ लो कि जब घर वाले ही सो रहे हैं तो उठ करके कर लो। तो इसलिए उन्होंने ये कर दिया। और प्रकृति भी शांत रहती है सुबह सुबह। बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा हॉर्न वगैरह भी नहीं बजेंगे, ये सब सारी चीजें नहीं होंगी, तो थोड़ा सा सुबह बेटर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हो तो दोपहर में ना करो, 9 बजे ना करो, 10 बजे ना करो। आपको जब भी समय मिले आप डेफिनेटली करो और पूरे मन से के साथ सिंसियरली करो। और मन की जो बाधाएं हैं ना, मेडिटेशन की जो बाधाएं हैं, वे मेडिटेशन करने से ही जाती हैं। हम्म। अरे, इसका सबसे बड़ी यही चीज है कि मेडिटेशन की बाधा भी मेडिटेशन करने से ही जाएगी। एक बार जो है कहानी आती है। कहानी क्या है, बात सच्चाई है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आप लोगों ने सुना होगा, विवेकानंद जी के गुरु। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे तोताराम। तो तोताराम तो इनलाइटेंड थे, लेकिन वो फेमस थे। रामकृष्ण परमहंस फेमस हो गए और उस समय इनलाइटेंड नहीं थे जब उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया तोताराम जी का। तो एक दिन आए तोताराम जी अचानक जो है आधम के। तो उन्होंने कहा कि जो है रामकृष्ण, तुमको एक बाधा है, बस ये बाधा तुम पार कर लो तो तुम भी इनलाइटेंड हो जाओ। तो कहा गुरु जी कौन बाधा है? तो वो काली के भक्त थे, काली की पूजा करते थे। तो कहे जब तुम काली को मार दो तुम। तो इन्होंने कहा कि काली को मार दूं? अरे गुरु जी, वो तो मेरी माँ है, वो तो मेरा मतलब सब कुछ है, मैं उनको कैसे मार दूंगा? कहे नहीं, मारना तो पड़ेगा, नहीं तो तुम फिर वहीं वहीं फंसे रहोगे। कहे उनको तलवार से काट दो, मेडिटेशन करते समय तलवार से काट दो। अब वो मेडिटेशन करने बैठे।
अब उनको जो मेडिटेशन, जब उनका काली जी का मेडिटेशन करने बैठे तो वो भूल गए कि मारना भी है, और जो है ये भी भूल गए, और दूसरा उनको मारने का मन नहीं कर रहा है। तो फिर जो है उठे ध्यान से, तोताराम जी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, मारा तुमने? कहा गुरु जी, एक तो याद ही नहीं रही, और याद नहीं रही, और फिर जो है याद भी नहीं रही, और दूसरा ये बताइए कि तलवार कहाँ से लाऊंगा मारने के लिए? तो कहे जहां से काली माँ को लाए हो वहीं से तलवार भी लाओगे। अरे मेंटल ही में तो तुमने काली माँ की बना रखी है, तो तलवार भी जो है वो मेंटल ही, मेंटल लाओ और काट दो। तुम आसक्त हो गए उनमें, उनमें आसक्त हो गए हो, तो बस उनकी आसक्ति हटा दो तो हो गया। भगवान बुद्ध जब कहते हैं कि अंतिम समय में जब वो ध्यान, माने बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले, इनलाइटनमेंट के पहले, बुद्ध धर्म में मार कहा जाता है, इम्पेडिमेंट्स को मार कहा जाता है। तो चूंकि यशोधरा में थोड़ा आसक्ति उनकी थी, तो मेडिटेशन करते करते करने लगे, तो मेरे ये मन में एक ख्याल, इतना गहरा ख्याल आया कि जो है यशोधरा को कोई लेके भाग रहा। इतना गहरा ख्याल आया कि उद्विग्न हो गए, परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि ये सही हो रहा है, एक वो तो मानसिक रहा था, क्योंकि उनमें आसक्ति थी तो उस तरह का विचार आ रहा था। तो फिर जो है जब इस तरह का विचार उनको आया, उठे, परेशान हुए। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि ये तो मार था, तो ये तो मन का विचार था, तो इसका मतलब यशोधरा के प्रति आसक्ति है मेरी। तो उन्होंने फिर यशोधरा के प्रति आसक्ति जब हटा दी तो फिर एनलाइटेंड हो गई। तो ये तो आसक्ति, हम मानसिक आसक्ति हम बनाते हैं ना। एक कहानी आती है मुल्ला नसरुद्दीन की। मुल्ला नसरुद्दीन इंटरव्यू देने गए जहाज सीखने का, सिप, उस समय तो सिप होता था, सिप सीखने का जो है इंटरव्यू देने गए। तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा ये बताओ कि अगर सिप जो है बीच समुंदर में हो, बहुत तेज हवा चलने लगे तो क्या करोगे? तो एक पाल होता है ना, वो कहते हैं वो पाल को डाल देंगे। कहे मान लो और तेज हवा चलने लगी तब क्या करोगे? तो कहे दूसरा पाल डाल देंगे, अटका देंगे। कहे मान लो और तेज चलने लगी तो क्या करोगे? तो कहे तीसरा पाल डाल देंगे। और जहाज में तो एक ही पाल होता है। तो कहे तुम इतना पाल कहाँ से लाओगे डालने के लिए? तो कहे जहां से तुम ये इतना बड़ा तूफान ला रहे हो वहां से मैं पाल लाऊंगा। तो कहने का ये मतलब है कि हमारा इतना सब ये सब मेंटली होता है, हमारे ऑब्स्टिकल भी मेंटली होते हैं, और मेंटल को ठीक करके उन ऑब्स्टिकल से भी हम ऊपर उठ सकते हैं। इसीलिए जितने भी आप देखिए कि जितने भी आपको बाधाएं हैं, सारी बाधाओं का महर्षि पतंजलि ने गिनाया है, और हमारे यहाँ योगी मीटर में हमने इस चीज का जो है वो किया है। अंकुर जी तो खैर इस चीज में मास्टर हैं, तो इस चीज का किया है। जो हमारे बाधाएं बताई गई हैं, बाधाएं 9 बाधाएं इसमें बताई गई है, और 5 बाधाएं जो है अ, उसमें हठ योग में बताई गई। 6 बाधाएं: अतिहार, अत्याहार, प्रयास से प्रजल्पो, नियमग्रह, जनसंघास लौल्यम च खट विनियोगो विनश्यति। अतिहार, ओवर ईटिंग भी बहुत बड़ी बाधा है, और बहुत ज्यादा एफर्ट करना यानी रजोगुण भी बहुत बड़ी बाधा है, और प्रजल्प बहुत ज्यादा बकवास करना भी बाधा है। लोग नहीं कहते हैं कि खूब बातें करते रहते हैं, फालतू की बातें करते रहते हैं, दिन भर बातें करते रहते हैं, ये भी एक बाधा है प्रजल्प। नियमाग्रह और नियम में बहुत ज्यादा जो लोग चलने लगते हैं तो वह भी एक बाधा बताया गया। और प्रजल्पो, मन की चंचलता एक बाधा है। तो इस तरह से ये बाधा है। पतंजलि क्या कहते हैं कि व्याधि, अस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूमिकृत, अनवस्थित्वानि, चित्त विक्षेपास्ते, अंतराया। अंतराय माने दीज आर द ऑब्स्टिकल्स, 9 ऑब्स्टिकल्स। तो पहला व्याधि बताते हैं। व्याधि का मतलब फिजिकल प्रॉब्लम। अगर फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो आप योग और ध्यान में ज्यादा मन नहीं लगेगा, फिजिकल प्रॉब्लम में ज्यादा ध्यान लगने लगेगा, उस पर ज्यादा मन, अटेंशन आपका जाने लगेगा। फिर अस्त्यान, अस्त्यान का मतलब अकर्मण्यता, काम करने का ना मन करना, मेंटल। और फिर संशय, डाउट। डाउट भी एक बहुत बड़ी बात है कि पता नहीं ये ठीक बोल रहा है आदमी कि नहीं ठीक बोल रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा,
है ना, होता भी है कि नहीं भी होता है, पता नहीं मेडिटेशन में मन एकाग्र भी होता है कि नहीं। हमारे एक साथ के हैं, हम लोग बिहार स्कूल ऑफ योगा में 88 में साथ में थे। अभी कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, बिहार स्कूल ऑफ योगा छोड़ चुके थे, तो अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो है ये ये तो बकवास का काम है, वो मन होने का, मन जो है वो पकड़ में नहीं आ सकता है, मन जो है कंट्रोल नहीं हो सकता। हमने कहा तुमने 30-35 साल अपना इतना समय गंवाया है, तो अब कह रहे हो कि मन पकड़ में नहीं आ सकता है, और फिर पकड़ में क्या आ सकता है, मन ही तो पकड़ में आ सकता है, और क्या पकड़ सकते हो तुम, तो फालतू का इतना इतना समय गंवा दिए। तो कहने का मतलब है कि संशय जो है बहुत बड़ा एक वो है। हमको तो मुझे तो अगर लिखना होता तो मैं कहता कि डाउट जो है वो सबसे बड़ा जो है इम्पेडिमेंट है, ऑब्स्टिकल है व्याधिवादी से। तो उन्होंने कहा व्याधि स्थान संशय प्रमाद, प्रमाद का मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बड़ी बाधा है, फिर आलस से बहुत बड़ी बाधा है, और अटैचमेंट बहुत बड़ी बाधा है। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो आपको अटैचमेंट हटाना पड़ेगा। पता लगा घर में ही अटैचमेंट हो गया, अटैच हो गए, फिर आप बाहर नहीं जाओगे, तो घर में ही अटैचमेंट हो गया तो फिर घर ही की दीवार में रहोगे। तो ये सब बाधाएं हैं। फिर इल्यूजन एक बड़ी बाधा है, जो जी चीज जैसी है उसको वैसा ना समझ के दूसरी तरह से समझ लेना इल्यूजन है, इसी को हमारे माया का है। तो कबीर कहते हैं कि कबीर ई माया राम की चढ़ी राम पे कूद, यानी माया राम ने ही बनाया है, अब राम पर ही कूद के चढ़ गई है। ये मन हमने ही बनाया है, अब मन हमारे ही ऊपर कूद के चढ़ गया है। और हुकुम राम का मेट के बनी राम खुद, यानी ये माया अब हमारा ही हुक्म मेट करके और राम खुद बन गई है। यानी हमारा मन अब खुद राम बन गया है। कहने का मतलब एक नौकर रखो और नौकर ही तुम्हारे ऊपर मालिक बन जाए, और तुम उसको पैसे भी देते रहो नौकरी करने का, और तुम ही उसके नौकर बन जाओ। तो ये यही हो गया है हमारे साथ। तो फिर पतंजलि क्या कहते हैं महर्षि कि तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, अगर तुम एकाग्रता बढ़ाने का अभ्यास कर लो तो तुम्हारी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। यानी फिजिकल प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, प्रमाद उमाद तो, डिसइंटरेस्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये तो दूर हो ही जाएगा। तो क्योंकि दीज आर द मेंटल प्रॉब्लम्स, डाउट भी मेंटल प्रॉब्लम हो गई, इल्यूजन भी मेंटल प्रॉब्लम हो गई। लेकिन फिजिकल प्रॉब्लम तो नॉर्मली लोग कहते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, तो फिजिकल प्रॉब्लम है। फिजिकल प्रॉब्लम आल्सो जो है भी जो होती है वह मन के प्रॉब्लम की वजह से होती है। क्योंकि मन हम देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए फिजिकल प्रॉब्लम को हम समझ लेते हैं, फील कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो इसलिए हम सोचते हैं कि फिजिकल प्रॉब्लम जो है वह अपने आप आई है। लेकिन वास्तव में शुरुआत उसकी मन से हुई। तो इसलिए किसी को अगर रोग है तो आपको रोग इसलिए हुआ है कि आपने रोग के विषय में सोचा है। आप रोग के अगेंस्ट सोचना शुरू कर दीजिए, आपका रोग ठीक हो जाएगा। इसी को तो वैराग्य कहते हैं। गलत आपने सोच रखा है, इसको हर चीज को आपने अपना बना करके सोच रखा है, आपकी अपनी नहीं है कोई चीज। कैसे किसी चीज को आप अपना कह सकते हो? माता पिता को भी कैसे आप कह सकते हो कि मेरे अपने हैं? एक सेकंड तो लगता है सब कुछ छूट जाने में, तो आप कैसे अपना कह सकते हो? तो इसी को तो हम माया कहते हैं, इसी को तो हमारे यहाँ माया कहा गया है कि ये सब टेम्परेरी है। जब टेम्परेरी है तो उसको अपना कह नहीं सकते हो, तो उसी उसी के लिए वो कहते हैं कि इसको डिटैच करो, यानी ये जो अपना नहीं है उसको अपना मत मानो, जो अपना है उसी को अपना मानो। तो जहां ये करने लगेंगे मेडिटेशन होने लगे। कहने का मतलब जितनी भी बाधाएं हैं वो सारी की सारी बाधाएं केवल और केवल माइंड की मास्टरी से पॉसिबल है। कोई भी ऐसी संसार में बाधा आपकी नहीं है कि जो माइंड की मास्टरी से पॉसिबल ना हो। ये मेरा अपना खुद का अनुभव, मैं दूसरे के अनुभव पर नहीं बता रहा हूँ। यद्यपि तो मेरी अभी स्थिति उतनी नहीं है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन जितनी स्थिति पर मैं उतना वो कहता हूँ कि अगर मैं अभी सोच लूं, जो चीज सोच लूं वो दूसरे दिन उसे घटित होने लगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं इस तरह से सोचूंगा कि चंद्रमा की जगह पे सूरज कर दो, सूरज की जगह पे चंद्रमा कर दो। जो पॉसिबल चीजें हैं वो अगर सोच लूं तो वो दूसरे दिन घटित होने लगे। तो ऐसा होता है। और ये कोई हम ऐसा नहीं है कि मैं कोई चमत्कारी हूं। ये मन के चमत्कार सबके साथ हो, आप मन को समझ लो बस।
मन की पावर को समझ लो बस, मन से पावरफुल कुछ भी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हम न तो समझना ये चाहते हैं, चाहते ही नहीं समझना है, और कोई समझाने वाला भी नहीं मिलता है। और ये चीज ऐसी भी होती है कि बहुत ज्यादा समझाने से भी नहीं समझ में आती। ये तो या तो प्रारब्ध से होता है, या तो हमारी जिज्ञासा होती है तब होता है, या तो हमको कोई समस्या बहुत गंभीर हो जाए तब होता है। नहीं तो आता नहीं है, कितना भी हम सुनते रहते हैं, आता नहीं है। लेकिन अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, 6 महीने में आपके सारी समस्याएं 6 महीने में ही लगभग दूर हो जाएगी। बाकी तो जो है, जो और बाकी चीजें हैं वो तो फिर अटेनमेंट हो ही जाएगा। लेकिन आपकी ये जो दिन प्रतिदिन वाली समस्याएं हैं, ये सब दूर हो जाएगी। सर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए हैं चैट बॉक्स पे, सबसे पहले मैं वो ले लेती हूँ। सो तो आपने कहा कि अगर हम 6 महीने तक इसको प्रैक्टिस करें तो हमारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। सो समवन हैज पुट अ क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग शुड बिगिनर्स मेडिटेट? एक बिगिनर स्टेज है, वो 10 मिनट्स 20 मिनट्स, या ये भी हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है? ऐसा होता है कि इसको करने के लिए जो 2-3 शर्तें होती हैं, वो शर्तें फॉलो करने में आपको जितना दिन लगे जितना समय लगे उतना समय कर लीजिए। जैसे एक तो एक मेडिटेशन के पोजेज होते हैं, जैसे सिद्धासन हो गया, पद्मासन हो गया, स्वास्तिक आसन हो गया, है ना, ये पोजेज है उसके जो सिंपल वाले हैं। अगर इन पर बैठ करके मेडिटेशन करिए और इन पर बैठिए और इन पर लगातार कुछ समय तक बैठे रहिए तो आपका दर्द करने लगेगा। और दूसरा जो है, आपको बॉडी को स्टिल करके बैठने है तो आपका बॉडी दर्द करने लगेगा, खिंचाव होने लगेगा, खींचने लगेगा, कहीं कमर में दर्द करेगा, कहीं पैर में पता लगा नंबनेस आने लगी है, कहीं खुजली होने लगी है, कुछ ना कुछ चीजें होती रहेंगी। तो आप उसको सबको जो है वो, इसी को हमारे यहाँ तप कहा गया है कि आप ये तप करिए कि 5 मिनट आज हम बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं, ऐसा बना लो। तो शुरू शुरू में 5 मिनट बनाओ या 2 मिनट बनाओ, कि चाहे शरीर में चाहे जितना ऐसा लगे कि पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम हिलेंगे नहीं। ऐसा ऐसा बनाते जाओ। अब धीरे धीरे जितना आपके अंदर होगा, आपकी विल होगी जितना, उतने आप उतना बनाते जाएंगे। तो तीव्र संवेगा नामाशंदा, यानी जो जितना फास्ट स्पीड से चलता है वह उतनी जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो वायुयान से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, पैदल जाओगे, बैलगाड़ी से जाओगे तो टाइम लगेगा। तो अब कौन किस वाहन से जाना चाहता है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको मन की शक्ति को अच्छी तरह से मालूम चल गया है, उस पर थिंक कर रहे हो और गहराई से उस पर विचार कर रहे हो, उस तरह से पढ़ रहे हो, ऐसे लोगों से मिल रहे हो, तो पहले दिन से, अब हम लोगों का पहले दिन से आधे घंटे बैठते, पहले दिन से आधे घंटे बैठते, और हमारे ढेर सारे स्टूडेंट हैं वो 1 मिनट भी नहीं बैठ पाते। तो अब किस चीज पर प्रियरिटी देते हो आप, क्या समझ पाए हो, आपकी समझ का लेवल कितना है, इस पर आप कर लो। अपने आप ही ये किसी के कहने से नहीं होगा। हाँ, कुछ जिज्ञासु शिष्य होते हैं कि जिनको आप कह दो कि भाई 5 मिनट तुम हिलना डुलना ना, तो 5 मिनट हिलते डुलते नहीं है, उस तरह से बना लेते हैं। तो ऐसे स्टूडेंटों के लिए तो मैं ये तो कहूंगा कि शुरुआत जो है पहले आसन से करो, कि उस आसन में स्थिर रखने का अभ्यास करो 5 मिनट, फिर 10 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। और मन नहीं करेगा लेकिन उसके साथ जबरदस्ती करो। मन क्या है? मन हमने अभी उसका दूसरी तरफ बना रखा है, तो वो दूसरी तरफ मन करता है। अब हम ये मन बना देंगे, जो हम सोचते हैं वही तो मन बनता है ना, जो सोचते हैं वो करते हैं वही मन बनता है। तो अब आप जब इस पर जबरदस्ती इस पर मन बना देंगे तो कुछ दिन बाद इसका मन करने लगेगा। तो जी सर, बस यही। थैंक यू सर। एक तो क्या बच्चों को मेडिटेशन इसका मतलब कर लेनी चाहिए? मतलब व्हाट इज द राइट एज जब किसी को भी शुरू कर देनी चाहिए मेडिटेशन? दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चंस। जब बच्चा समझदार हो जाए तो शुरू कर देना चाहिए, लेकिन बच्चे को ऐसे नहीं करवाया जा सकता। आप ओके। तो करते रहोगे, बच्चे को देखा, बच्चे देखेगा तो करने लगेगा। जैसे मेरा बेटा है 18 साल का है, तो मैं मेडिटेशन करता था उसको, मैं कभी भी आज तक मैंने बोला कि मेडिटेशन कर, आई नेवर सेड इट, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेडिटेशन करो।
अब वो अपने आप ही आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम करता है। तो आपका बच्चा जो है आपसे सीखता है, अगर आप आचरण में खुद कर रहे हो ना, बच्चा भी करेगा, वो करेगा, पक्का करेगा। और पता लगा आप ही नहीं कर रहे हो और बच्चे को बता रहे हो, तो फिर ये तो पाखंड होता है, हिपोक्रेसी होती है ये। फिर बच्चा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, और उल्टा करेगा। क्योंकि आप जो कह रहे हो वो नहीं कर रहे हो, तो आप उल्टा कर रहे हो तो वो भी उल्टा करेगा। जी। तो पहले जो है आप करो, लेकिन हाँ, अगर बच्चा जो है वो करने का वो है, इच्छुक है, आपके ना कहने पर भी आपसे पूछता है कि भाई जो है, आपके ना कहने से उसको आप नहीं कहते हो, फिर भी वो पूछता है कि कैसे करूं, क्या करूं, कैसे ना करूं, ये सब पूछता है, तो फिर उसको जरूर बताना चाहिए। और राइट एज जो है, जिस समय आपको ये पता चल जाए कि मेडिटेशन जो है हमारे लिए वह औषधि है, कि वह चाबी है कि जिससे आप सारे तालों का जो है वो खोल सकते हो। संसार में जितने भी ताले हैं एक चाबी से खोल सकते हो। जब आपको ये पता चल जाएगा जिससे, तो उसी दिन से मेडिटेशन शुरू कर दो। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आप कर भी नहीं पाओगे। राइट एज कुछ नहीं होती है। मैं एक बताता हूँ, एक कहानी बताता हूँ, और ये भगवान बुद्ध की है, मैंने शायद पहले भी बता चुका हूँ कि भगवान बुद्ध जब भिक्षु बने, निकले घर से, तो कपिल वस्तु के उनके पिताजी उनके राजा थे, और एक छोटा सा जनपद था, लेकिन वह बड़े राजा जो थे, वह वो थे क्या नाम आ रहा है, कौशल नरेश प्रसेनजित थे कौशल के, और एक और राजा थे, उनका नाम था बिंदुसार, बिंबिसार, बिंबिसार सॉरी, बिंबिसार। बिंबिसार को ये पता चला कि वो जो है भिक्षु बन गया, गौतम भिक्षु बन गए। तो उन्होंने कहा ये उसकी ये उम्र कहाँ है, ये इस उम्र में भिक्षु नहीं बना जाता है। ये अभी तुम इतने यंग हो, इतने स्मार्ट हो, तो खूब भोग करो। तो उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि बिंबिसार ने, कि जो है जब वो गौतम इस तरफ आए तो मुझसे जरूर मिलवाना। तो जब गौतम उस तरफ गए, तो उनके मंत्री ने बताया कि वो इस दिन आने वाले हैं। तो उनसे बिंबिसार मिले जब, तो उन्होंने कहा, गौतम तुम जो है, अभी तुम्हारी ये उम्र क्या है, भिक्षु बनने की ये उम्र होती है। और अगर मान लो ऐसा है कि तुम्हारी बड़ी महत्वाकांक्षा रही है, और तुम्हारा राज्य बहुत छोटा है और हमारे अंडर में आता है, तुम्हारे पिताजी का राज्य हमारे अंडर में आता है, तो तुमको और ज्यादा इच्छा हो तो लो, मेरा आधा राज्य ले लो। अगर तुम उसमें नहीं सेटिस्फाई हो रहे हो, मान लो छोटा है तुम्हारा राज्य, मुझे लगता है कि तुम बहुत एम्बिशियस हो, तो इसलिए आधा राज्य मेरा ले लो। और मान लो इससे भी तुमको ये नहीं लगता है कि मैं किसी का दिया हुआ नहीं लूंगा, तो तुमको मैं अपनी पूरी सेना दे देता हूँ, जहां तक जीत सको जाके जीत। तो उन्होंने पहले प्रश्न का ये उत्तर दिया था कि राजन, ये तो आपकी महानता है कि मेरे प्रति प्रेम है कि आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन राजन, उम्र का कुछ निश्चित होता है क्या? तुम्हारा ये निश्चित है कि तुम्हारा बुढ़ापा आएगा ही? हो सकता है जवानी में ही मर जाओ। उम्र का क्या निश्चित है? हो सकता है कल ही मर जाओ, हो सकता है मैं परसों ही मर जाऊं। अब बुढ़ापा तक मैं इंतजार करते रहूंगा तो फिर तो कब आएगा कब नहीं आएगा, किस जन्म में आएगा बुढ़ापा, किस जन्म में नहीं आएगा, क्या पता है। तो इसलिए जो चीज सत्य है उसको आज करो, उसको कल पर मत डालो। और फिर उन्होंने ये कहा कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर कहता हूं कि मैं इस घर से निकल चुका हूं, जिस कार्य के लिए निकला हूं उस कार्य को किए बिना मैं दूसरा और कुछ भी नहीं कर सकता हूं। चाहे हिमालय पर्वत जो है अपना रास्ता बदल दे, डगमगाने लगे, सूरज पूरब से पश्चिम निकलने लगे, लेकिन मैं अपना मार्ग नहीं बदल सकता, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मन की शक्ति क्या होती। तो जिसको मन की शक्ति का पता चल जाता है, तो फिर वो मार्ग किस आधार पर बदलेगा, क्यों बदलेगा? जब उसी वही सब कुछ है, ये पता चल गया कि उसको ठीक कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और कबीर भी कहते हैं कि जो है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए,
जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए, जब जड़ को सींच दोगे तो पेड़ ओड़ की तो पत्तियां होती हैं तो सब अपने आप ही ठीक रहेंगी। तो जड़ क्या है? मन ही तो जड़ है ना, मन को ठीक करना। और वो कहते हैं, एक एक जगह और कहते हैं कि तन का जोगी सब करे, मन का बिरला कोय, सहजय सब सिद्धि पाइए जब मन जोगी हो। यानी शरीर को तो सब चेंज करने का प्रयास करते हैं, तन से सब जोगी बनने का प्रयास करते हैं, योगी बनने का माला लगा लिया और तिलक लगा लिया, बड़े बड़े बाल कर लिए, दाढ़ी कर लिया, कपड़ा बदल लिया, या तन को, माने हम लोग तन से युवा बनने का प्रयास करते हैं, बाल काले करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। 80 साल के हो गए। एक 80 साल की, एक करीब 8-10 साल पहले एक लेडी आई हमारे पास, 80 साल की थी। उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरा जो है ये थाई जो है ना, ये थुलथुला हो गया है और झुर्रियां आ गई। तो हमने कहा, तो आते हैं? कहा नहीं, बहू को नहीं है। तो हम कहे, बहू तो तुम्हारी 20 साल 22 साल की है, तो उसको कैसे होगा? तो कहे, क्या करूं कि जो है मैं, मेरा भी वैसे होने लगे। अब मन इस तरह का, हम तन को जोगी करने का प्रयास, तन को जो है बिल्कुल ठीक ठाक कि हमेशा जो है वह बाल काला रहे, तो झूठे बाल को काला करने का प्रयास करते रहेंगे, चीजों को लगाने का प्रयास करते रहेंगे कि बाल काला रहे, ठीक है। और लेडी जो है वो ब्यूटी पार्लर जाएंगी, और पुरुष लोग हैंडसम पार्लर जाएंगे। ये सब करते रहते हैं, माने ये सब करते रहते हैं। ये सब फालतू का पाखंड ही तो है ना। जो चीज जैसी है उसको वैसे रहने दो। ये सब करोगे कभी शांति नहीं मिलने वाली। तो वो कहते हैं कि तन का जोगी सब करे, तन को सब बदलने का प्रयास करते रहते हैं, मन को बदलने का प्रयास कोई नहीं करता। बिरला को, यानी ओनली few people wants to change their mind. Only rare persons want to change their mind. But if you can change your mind, then everything, whatever you want to accomplish, you will get automatically. सहज सब सिद्धि पाइए जब मन जोगी। अगर मन को जोगी बना लिया तो आपको सहज सब कुछ अपने आप ही उपलब्ध, जितना जरूरत है वो अपने आप ही उपलब्ध हो जाता है। और इतना ही नहीं, आपको चीजें अपने आप ही लोग भी देना शुरू कर देते हैं। चीजों भी सुना हो, अगर आपकी इच्छा होती है तो चीजें देना भी लोग शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को इच्छा कहाँ होती? तो अगर आता भी है तो वो बांट देते हैं। जैसे मेरे गुरुजी का ही रहता था कि जरूरत से ज्यादा जो चीजें होती थी तो उसको बंटवा देते थे। तो ये चीजें अपने आप होती जाएगी, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते हैं। हमारा पूरा जीवन इसी में चला जाता है। जो मूल चीज है उसको हम समझ ही नहीं पाते हैं कि भैया मन को ठीक करो। तुम मन को ठीक करने के लिए आए हो, मन पर कंट्रोल करने के लिए आए हो। तुम फालतू के चक्कर में पड़ रहे हो, जो नहीं कंट्रोल करना चाहिए उसको कंट्रोल कर रहे हो। पति पत्नी को कंट्रोल कर रहा है, पत्नी पति को कंट्रोल कर रहा है, हम पड़ोसी को कंट्रोल कर रहे हैं। हमको ये मालूम है कि मैं देखता हूँ कि ढेर सारे लोग, कुछ लोग आते हैं कि सर उसकी बेटी जो है ये कर रही है, उसकी बेटी वहां गई थी, उसका बेटा वहां गया था। अरे तुम्हारा बेटी बेटे कहाँ गया था ये पहले देखो। तुम कहाँ जाते हो पहले ये देखो। उसका बेटी उसका बेटा, मैंने हम बाहर के, क्योंकि हमारी सेंसेस जो है वो बाहर की ही चीजों के लिए बनी है, तो हम उन्हीं का यूज करते हैं। अंदर वाला जो है उसको यूज नहीं करते। तो स्वाभाविक सी बात है कि समस्या रहेगी रहेगी, फिर मेडिटेशन भी नहीं लगने वाला है। अब आप घंटों नहीं, आप 50 साल तक मेडिटेशन करते रहो, अगर राइट वे में नहीं करोगे तो मेडिटेशन कभी नहीं लगने वाला है। आप दिन में जो है उल्टा सीधा सोचो और सुबह आधा घंटा मेडिटेशन करो, तो कैसे मेडिटेशन लगेगा? कैसे मन एकाग्र होगा? वो तो मन में वही चीज चलता रहेगा जो आपने दिन में सोचा विचारा था। दिन में आप जो है, दिन में आप उल्टा सीधा जो है हरकत करते रहो कि हाँ जो है सारी चीजें करते रहो, जितना भी गलत चीजें होती हैं वो सब करते रहो। और जो है आप सुबह उठ करके मेडिटेशन करने का प्रयास करो, कभी नहीं मन लगेगा। कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा अपने दिन में जो आप काम कर रहे हो, उसका कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा कि हाँ सुबह मेडिटेशन फिर करोगे, मेडिटेशन करोगे तो दिन वाला चीजें ठीक होगी, दिन वाला ठीक करोगे तो सुबह का मेडिटेशन ठीक होगा। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मन को आप इस तरह से नहीं कर सकते हो कि एक समय ये करो एक समय ये करो। मन जो है वो एक ही दिशा में भागना पड़ता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया माइंड मास्टरी में कि एक लक्ष्य बनाओ, एक टारगेट बनाओ। तो जब आप टारगेट ओरिएंटेड होते हैं तभी आपका मेडिटेशन लग सकता है। टारगेट ओरिएंटेड नहीं होगे तो मेडिटेशन कभी नहीं लगने वाला। कितना भी आप प्रयास कर लीजिए कभी नहीं होगा। और टारगेट जो है वह थोड़ा बड़ा बनाओ,
थोड़ा बड़ा बनाओ, छोटा मत बनाओ। एक कहानी आती है भगवान शिव की, शिव पुराण में है कि एक बूढ़ा आदमी, एक कहानी है, एक बूढ़ा आदमी था और कोई घर परिवार नहीं था, लेकिन इच्छाएं बहुत थी। तो जैसा कि होता ही है कि आदमी जितने बूढ़ा होता जाता है उतनी ज्यादा इच्छाएं होती जाती हैं, उतने ज्यादा रेस्टलेस होता जाता है। आम जब पकता है तो जब पकता है तो मीठा होता है, लेकिन मनुष्य जितने पकता जाता है उतने ज्यादा और ज्यादा रेस्टलेस होता जाता है, कारण कि उसको और ज्यादा इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो उसने भगवान शिव का जो है पूजा करना शुरू कर दिया। किसी ने बताया कि भगवान शिव की पूजा करो तो जो है तुमको जो चीज तुम्हारी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। यद्यपि ऐसा नहीं है कि किसी की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन एक सिंबॉलिक कहानी बताएंगे। तो उसने पूजा करना शुरू किया। अब भगवान शिव प्रसन्न हुए, आए, उन्होंने कहा तुम एक वरदान जो कुछ मांगना हो मांग लो। तो उसने क्या मांगा कि सोने के थाली में हमारा पोता खाना खाए हमारे सामने। अब पोता कैसे होगा? आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको पोता कैसे होगा, और बुढ़ापे में कैसे होगा? आपकी शादी भी कैसे होगी? तो भगवान शंकर को उसको यंग बनाना पड़ा। अब यंग बनाना पड़ा, फिर उसकी शादी भी करवानी पड़ी। शादी करवानी पड़ी, फिर उससे उसका बच्चा हुआ, फिर उस बच्चे का एक बच्चा हुआ, और वो सोने की थाली में। फिर उसको रिच भी बनाना पड़ा, नहीं तो ऐसे कैसे सोने की थाली में एक सामान्य आदमी खा लेगा। तो उनको रिच भी बनाना पड़ा। तो ऐसा लक्ष्य बनाओ, बड़ा लक्ष्य बनाओ। छोटा लक्ष्य बनाओगे तो छोटी चीजें मिलेंगी। ध्यान एक ऐसा चीज है कि जिससे आपको हाईएस्ट लक्ष्य बनाना चाहिए, तो आपको बाकी सारी चीजें, कन्याकुमारी का लक्ष्य बनाओ तो बीच में बॉम्बे वॉम्बे माया नगरी वगरी सब बीच में आ जाएंगे, लेकिन माया नगरी का बनाओगे तो कन्याकुमारी तक नहीं पहुंच। It's so wonderful. Didn't I say that it's going to be an insightful? And I think I only said insightful, but it's going to be an interesting session also. We always have these exciting, interesting insights from Kaushal sir. Always. Thank you, sir. So, sir, there are 2, 3 more questions here. हम्म। Um, एक क्वेश्चन है कि does meditation mean completely thoughtless mind? एंड उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी है सर। आई थिंक मुझे लगता है दोनों क्वेश्चन एक साथ आंसर हो सकते हैं। व्हाट इज द गोल ऑफ मेडिटेशन? मतलब इट इज टू ऑब्जर्व द माइंड और टू एम्प्टी द माइंड, बीइंग थॉटलेस? देखिए, ये प्रोसेस है, ये ऑब्जर्वर बनना, ऑब्जेक्ट को देखना, ये प्रोसेस है। और जो इसका रिजल्ट है वह थॉटलेसनेस है। ठीक है, तो आप किस स्टेज में, जैसे आप पीएचडी करेंगे तो पीएचडी करने के लिए एमए एक प्रोसेस है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10th 12th, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो ये सब प्रोसेस है, लेकिन पीएचडी फाइनल तो तब होगा आपका जब आप इसको सबको कर देंगे और पीएचडी अच्छी तरह से कर। तो कहने का ये मतलब है कि ये प्रोसेस है। तो अब गोल क्या होगा मेडिटेशन का? मेडिटेशन का गोल तो मेडिटेशन में लोग यही प्रश्न करते हैं कि मेडिटेशन में मुझे मिलेगा क्या, मेडिटेशन करूं तो मिले क्या। तो मैं बार बार यही एक एग्जांपल देता हूं कि एक महिला थी, समृद्ध महिला, रिच महिला, तो कहीं किसी फ्रेंड के बेटे की शादी में गई, तो अपना खूब सज धज के गई। स्वाभाविक सी बात है कि जैसे महिलाएं सज धज के जाती थी और खूब रिच भी थी, तो खूब गहने वहने पहन के गई, मंगलसूत्र वगैरह पहन के गई। तो जब वहां गई तो उसने शराब पिया, सबके बीच में बैठ करके शराब पिया। अब उसी शराब में ही किसी महिला ने शराब, जो उसने भी पिया था इन्होंने भी पिया, जब शराब खूब चढ़ गई तो उसने ये कहा कि तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है। तो वो मंगलसूत्र चारों तरफ ढूंढने लगी, पूरा पूरा रात मंगलसूत्र ढूंढती रही। जब सुबह नशा हटा तब उसको देखा कि मंगलसूत्र तो यही है। अब आप ये बताइए कि मंगलसूत्र गायब हुआ था या मंगलसूत्र मिला? न तो गायब हुआ था न मिला। हुआ ये था कि तुम्हारा नशा चढ़ गया था, नशा हट गया। तो मेडिटेशन से नशा हट जाता है। आपका जब नशा हट जाएगा तो आपको रियलिटी का अपने आप ही पता हो जाएगा। बेसिकली हमको मेडिटेशन में मिलता नहीं है, जो गंदगी हमने भर रखी है वो निकल जाए। तो गंदगी को निकालने को मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में कुछ भी मिलता नहीं,
मेडिटेशन में आप केवल अपने आप से मिलते हो, बाहर की दुनिया से हट जाते हो, आप अपने आप से मिल जाते हो। और डेलिबरेटली, एक तो आप गहरी नींद में भी मिलते हो अपने आप से, लेकिन उसमें आपको पता नहीं होता है, उसमें आपका मन रोस्ट नहीं रहता है, उसमें आपका मन रहता है। मेडिटेशन में मन रोस्ट हो जाता है कि आप जब तक चाहो तब तक अपने साथ रहो। ये मेडिटेशन। Thank you so much, sir. And there is also one question on the book, that does the book give you step-by-step process on how to begin and what to do during meditation? So the book has a lot of in-depth information, details about meditation, what are the types, what are the different states of mind, when to do, when not to do. They are very common questions and little short meditations also. So I would highly recommend everyone to please grab a copy. Shivani has posted a link on chat box. Please go grab the copies, and so that we can have common discussions and we can shoot more questions to sir. अगली बार जब हम सर को मिले तो सिर्फ क्वेश्चंस का भंडार लेकर मिले. सो थैंक यू सो मच सर. एंड मुझे नहीं लगता है कि अगली बार मैं सेशन कंडक्ट भी कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बाल काले नहीं कराती हूँ, मैं तो गोल्डन भी करा देती हूँ सर. मुझे तो लग रहा है बहुत ज्यादा मन भटका हुआ है मेरा. और लाइक मैं कहाँ अपना मुंह छुपाऊं. ये तो अभी कुछ दिन तक पहले मैं भी करवाता था, अभी 5 6 7 साल पहले मैं भी करवाता था. ये देन आई एम ओके. एक बार बस 1 मिनट ये बोल करके मैं बंद करूंगा. एक बार जो है जब मैं आश्रम में था, तो एक गुरुजी ने एक दिन सेशन लेने को बोला कि आप जाके सेशन लो. मैं सेशन ले रहा था, तो वहां पर मैंने बोला कि देखो 4 बजे उठना चाहिए, सुबह 4 बजे. अब हम लोगों को 4 बजे उठने का रहता था, 4 बज के 1 मिनट नहीं हो सकता था. आपको 4 बजे उठना है या 4 बजे के पहले उठना है? 4 बज के 1 मिनट अगर घड़ी ने दिखा दिया तो फिर आपको उतने डंडा पड़ेंगे जितने ज्यादा हुआ है मिनट. तो मैंने वहां बोला 4 बजे का. अब बाकी के क्या है कि सैटरडे संडे को थोड़ा ऑफ, मैंने ऑफ रहता था, तो उसमें ऐसा बहुत लिमिटेशन नहीं रहती थी हम लोगों के लेवल पर. लोगों कि थोड़ा सा जब सीनियर बन जाओ ना तो फिर उतना वो नहीं रहता है. तो मैंने वहां बोला, गुरु जी पीछे से सुन रहे थे, या उनका ऐसा सिस्टम रहता था ना कि वो कोई भी चीज करते रहो, उनके लोग ऐसे रहते थे कि वो सब बताने के लिए उनको रहते थे. तो मैंने बोला ये चीज. फिर जो है बाकी दिन सैटरडे सैटरडे संडे को कभी कभी 5:30, कभी कभी 5 बजे, कभी 4:30 बजे ऐसे भी उठ लेता था. तो उनको ये भी पता होता था कि कब उठता है, ये हो रहा है. ये पता नहीं कैसे, कोई सीसीटीवी नहीं रहता था, कुछ नहीं रहता था, लेकिन उनको सब पता रहता था. कोई इंट्यूशन से नहीं, उनका ऐसा लोग सेट रहते थे वो सब बताने वाले. तो ये मैंने बोल दिया. फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया. कहा सेशन तो तुम्हारा बहुत अच्छा था, नजदीक आओ. आओ, बहुत बढ़िया. तो मैं सोचा थपथपाने के लिए कर रहे हैं, एक थप्पड़ मार दिया उन्होंने. तो कहा कि जो है मैंने कहा गुरु जी, अब वो ये भी बोल भी नहीं सकते थे कि क्यों मारा, क्यों मारा. तो अपने आप ही बोले कि साले जो है वो बहुत ज्यादा जो है बनते हो. 4 बजे माने योगी बनने लगे हो, 4 बजे तुम उठते हो. कहाँ सैटरडे संडे को कहाँ 4 बजे उठते हो? तो कहने का मतलब कि जो करो वही बोलो. तो अब मेरा बाद मैं भी अब ये देखने लगा कि हाँ भाई, अब ये ऐसा है, सफेद मैं रखने लगा, तो फिर अपना बोल देता. ये गुरु जी का ये सीख था, तब सीख कर. Thank you so much, sir. Thank you for this incredibly insightful session. We always have so much fun whenever you are around. We laugh, we giggle, we learn, we observe, we practice. So that is the power of Kaushal, sir. So thank you. And thank you everybody else for tuning in today and staying back. And, it was this time. Joining of us. Thank the you. week. Yeah, thank you. And remember, meditation is a journey. That is what Sir has been telling us on and in every session. So meditation is a journey. Let's enjoy this journey and keep learning and keep reaping the benefits, profound benefits of this beautiful therapy of mind, body, and spirit.
Thank you all, and share this video with everyone. Encourage everyone to come up next time whenever we have Sir around. And you may join Seeker. Please log into www.seeker.com and take the test. Bye-bye.